हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये आज का जो लेक्चर है, आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लावर, उसके बाद आप देखते हैं कि फ्रूट की मॉर्फोलॉजी आज आपने करना है इस लेक्चर में। तो आफ्टर ऑल फ्रूट होता क्या है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको जस्ट आई वांट टू लेट यू नो कि ये फ्रूट जो है, व्हाट डज इट मीन and what study of the fruit that is called, it is known as pomology. Pomology, a branch of science which deals the how the seed, how the fruit is formed is there. So in other words, you may say the study of the fruits, that is called pomology. So when the anthesis of the flower is going or blooming of the flower is takes place, so a process, next process will be start, that is pollination, where we will discuss and our a reproductive process in +2 syllabus. Here we are only discussing about, that is the morphological structure of the fruit is there. So here you should concentrate what is fruit. Actually the fruit जो है, it is the product of after fertilization. तो आपने देखा है कि whenever the pollen reaches at the stigma of the carpel, after germinating, then that is the nuclei comes through the style and reaches at the ovary, where the ovule is located, where the fertilization is process takes place. This is the characteristic feature, or that is the double fertilization in case of angiosperm takes place is there. So after that is the fertilization, all the members, all the components of the flower, they are matured one, and subsequently they are withered, they are shedding off. Only it is the ovary which is at that time immature stage, and it starts maturation with the stimulus of pollination as well as that is the seed formation. तो वहां पर ओवरी जो है वो क्या करती है, मैच्योर होना शुरू हो जाती है. तो फ्रूट क्या होता है कि ये जो ओवरी जो है, when it's getting its maturation, or it is known ripened ovary, that is called, that is the fruit is there. So it is a mature or ripened ovary, this is known as fruit. अल्टीमेटली जो है ये जो ओवरी जो थी वो किस में बदल गई, फ्रूट में बदल गई. आफ्टर दैट इज द fertilization, the ovary changes into the fruit, and that is ovule which is located inside the ovary, that is changes into seed. ये जो है that is the post fertilization changes takes place in the ovary. उसके बाद आप देखते हैं कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया. अब यहां पर हम फ्रूट को दो कैटेगरी में बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं कि ट्रू फ्रूट्स किसको कहते हैं और फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं. तो ट्रू फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल ओवरी. यहां पर it is the ovary where then is a single ovary, or that is the monocarpellary carpel, by which that is the fruit is developed. So, means
that is after that is the fertilization, that is whatever that is the structure of the ovary changes into fruit. Such type of fruit they are known as true fruits. In other words, हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू after that is the fertilization, the ovary changes into the fruit. Such type of fruits they are known as true fruits. And for example is concerned is there, it is represented by mango. मैंगो का जो फ्रूट जो है उसको हम ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं. ऑन द कंट्रास्ट सेकंड जो इसके अपोजिट कैटेगरी के जो ग्रुप है फ्रूट का उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट. इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं कि जिसमें अदर देन द ओवरी, इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लावर्स which we have discussed earlier, they also play their role in the formation of fruit. Such type of, या आप ये कह सकते हैं कि without fertilization, what is that the fruit is developed? That is called false fruit. So false fruit when other floral parts also take part in the formation of the fruit. इसका हम एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एप्पल एंड पियर. यहां पर एडिबल जो पार्ट है इसमें पार्टिसिपेशन जो थैलामस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहां पर थैलामस की पार्टिसिपेशन होती है और वो फ्लैशी फ्रूट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. एडिबल पार्ट ऑफ दैट इज विच इज बीइंग इन फ्लैशी इन नेचर, इट इज द थैलामस. तो इस टाइप के फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट. एप्पल एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एप्पल एंड दैट इज द पियर इज देयर. इसके बाद कहते हैं कि इस ग्रुप में फॉल्स फ्रूट में आने वाला ब्रिंजल भी है, क्योंकि ब्रिंजल में जो कैलिक्स रीजन जो है दैट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. कहने का मतलब इसमें जो पार्टिसिपेशन जो है कैलिक्स की भी रहती है, इसलिए ब्रिंजल को भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं along with the apple and pear is there. Now structure of a fruit is there. अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारे फ्रूट का एक जनरल एग्जांपल एक जो हमने डिस्क्राइब किया है एज पर योर सिलेबस, एक फ्रूट जो है एक मैंगो का लिया है और दूसरा जो है हमने कोकोनट का लिया है. यहां पर हम देखते हैं कि जो फ्रूट होता है उस फ्रूट को हम दो डिस्टिंग्विश पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं. एक तो हम कहते हैं पेरिकार्प. ये जो पेरिकार्प जो है पेरीफेरी से बना हुआ है कि ओवरी की जो बॉल जो है वो चेंजेस हो जाता है, दैट इज इन पेरिकार्प. फ्रूट की जो चेंजेस है, फ्रूट की जो कवरिंग है और चारों तरफ उसके होती है पेरिफेरल होती है, दैट्स वाई इट इज टेक्निकली नोन एज पेरिकार्प. और ये पेरिकार्प जो है कहां से डेवलप होती है, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ओवरी के अंदर है तो ओवरी की जो वॉल जो है दैट इज चेंजेस इनटू पेरिकार्प. या इन अदर वर्ड्स यू में से द पेरिकार्प डिराइव्ड फ्रॉम द ओवेरियन वॉल. ओवरी की जो वॉल जो है that is transformed into the periphery of the fruits, that's why it is known as pericarp is there. इस और दूसरा जो है इसका सीड है. दो ही कंपोजिशन होगा. इसका मतलब स्ट्रक्चर को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो फ्रूट जो है उसके दो पार्ट हो गए. वन इज दैट इज द चारों तरफ की जो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो होगी पेरिकार्प और उसके अंदर जो है वो हो गया सीड. ये दो कंपोनेंट्स जो है वो फ्रूट का जो है कंपोनेंट्स बनाते हैं. अब ये जो पेरिकार्प है ये वेरी करेगी फ्रूट टू फ्रूट इज देयर. इस पेरिकार्प के विच इज सराउंडिंग ओवर दैट इज द सीड इज देयर, इट दैट इज मे बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री पार्ट इज देयर. वन इज कॉल्ड एपिकार्प, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है लेयर, थिन इन नेचर, हार्ड भी होती है तो इसको हम एपिकार्प कहते हैं. बीच की जो मिडिल जो लेयर होती है
वो स्पॉन्जी होती है, जूसी बन जाती है, फ्लैसी होती है। अगर हम एक कच्चे आम को देखते हैं तो वहां पर ये वाइट इन नेचर होती है, लेकिन जब आम पक जाता है तो आप देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर फ्लैसी और जूसी हो जाती है, जिसको हम मीजोकार्प कहते हैं। और इसके अंदर जो है थर्ड जो लेयर जो है दैट इज एंडोकार्प। इट इज वेरी मच हार्ड एंड स्टोनी इन नेचर। इसके अंदर जो है सीड प्रेजेंट होता है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैंगो इज देयर। तो अगर हम मैंगो के फ्लावर को देखते हैं तो दिस मैंगो फ्लावर की जो पेरिकार्प है, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री मेजर पार्ट इज देयर। आउटर मोस्ट लेयर, जब इमेच्योर मैंगो होता है उस समय ये ग्रीन कलर का होता है, व्हेन इट इज गेटिंग मैच्योर्ड राइप हो जाता है तो येलोइश कलर का बन जाता है। अंदर की जो मीजोकार्प है वो सोर एंड दैट इज द व्हाइटिश इन नेचर होते हैं। व्हेन इट्स बिकम a ripe ripened is there, then it is become juicy yellow and sweety in nature. Or innermost layer that is called the endocarp, which is very hard or stony layer बनते हैं। This is the three distinguished constituents of that is the pericarp is there। और ये जो सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। इसके अंदर जो है दैट इज एम्ब्रियो इज देयर। तो ये जनरल स्ट्रक्चर जो है मैंगो का है, मैंगो फ्रूट इज देयर। और ये मैंगो फ्रूट अगर हम इसके साथ कंपेयर कर देते हैं विद दी एपिकार्प इज देयर, जैसे कोकोनट के साथ, तो कोकोनट में आप देखते हैं कि यही सेम स्ट्रक्चर, इसमें जो पेरिकार्प जो है इनडिस्टिंक्ट, यहां पर देखते हैं कि पेरिकार्प इज डिस्टिंग्विश्ड, that can be distinguished into epicarp, mesocarp and endocarp, where in this coconut that is indistinct, that you cannot be distinct easily is there, but very much outermost layer which is very much thinner is there, and mesocarp which is in case of mango is it is fleshy and juicy. Here you will see that is a fibrous in nature is there. And in this case the endocarp, it is very much hard and stone. Here in this case that is endosperm, which is very much that is soft and it is edible part is there. This is in case of in this one, this is non-edible, where there is the edible. So that is you can distinguish from this mango to the coconut, though they are belonging to a same group is there, that is category of fruit that is dry in nature is there. So now after moreover this the characteristic feature of this fruits are concerned, a second important term which are generally used is there, that is parthenocarpic fruit. Parthenogenesis in case of animals are concerned is unfertilized egg develop in case of honeybees is there, where there is no sexual reproduction is takes fusion of gametes takes place is there. Even then the process of that is the seed formation is there, reproduction is there without getting fertilization is there. So here the part where that is the process where that is the seed formation is there but without fertilization. So such type of fruit that may be included in the category that is called parthenocarpic fruit. In other words, आप ये कह सकते हैं कि the parthenocarpic fruits are those fruits which derived without fertilization. Without fertilization से जो फ्रूट बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, कुकुम्बर एक्सेट्रा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर सीड भी बनते हैं बट वो सीड जो है ज्यादा बायोवेल नहीं होते हैं एज इन कंपेयर टू द ट्रू फ्रूट्स आर कंसर्न्ड इज देयर। So this is a distinct feature of that is the parthenocarpic fruits is there. Though the fruits is develops with the seeds, but there is no fertilization processes takes place is there. So during this process, whenever that is the fruits are developed, such type of fruits are known as parthenocarpic
parthenocarpic fruits, and they are represented by, that is, banana, orange, grapes, cucumber, etc. These are the terms. This is very important, and you have to restrict whatever that is the syllabus prescribed for your studies concerned is there. Then the next another important term, which is polyembryony. यहाँ पर as the term polyembryony itself itself mention its, that is the why the term is there. Poly means many, embryo means embryos, where many embryos in the seed. The polyembryony is a condition where there are many embryo are present in the seed is there. So this is known as polyembryony phenomena or process is there. So because there are a large number of the fruits are there, so इन फ्रूट्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश इन 3 कैटेगरी. सिंपल फ्रूट्स. अब सिंपल फ्रूट क्या होता है? दोज फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी ओवरी, ऐसे एंड रिप्रेजेंटेड बाय एग्जांपल इज, दैट इज, ये जो सिंपल फ्रूट जो है वो एक सिंगल ओवरी से बनते हैं जिसमें कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है. तो सिंपल फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी ओवरी, और इन केस मल्टी कार्पिलरी है तो देन इट इज दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, सिंकार्पस कंडीशन होगी. और ये इस टाइप के फ्रूट को हम कहते हैं दैट इज सिंपल फ्रूट्स आर देयर. इस सिंपल फ्रूट्स को हम अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वन इज ड्राई एंड अदर इज सक्यूलेंट. ड्राई वाला केस जो है जिसमें आपको बताया है कि यहाँ वेयर दिस पेरिकार्प जो है इट इज इनडिस्टिंक्ट. पेरिकार्प इज इनडिस्टिंक्ट, दैट मीन्स which we cannot divide it into, that is the 3 distinguished layer, whether it is epicarp, mesocarp and endocarp is there. ठीक है. and this is dry fruit is there, and this indistinct form में होते हैं. और दूसरा जो ग्रुप जो है वो सक्कुलेंट होता है. सक्कुलेंट में ये जो ड्राई फ्रूट वाला पेरिकार्प इंडिस्टिंक्ट होती है, थिन एपिकार्प है और मिडिल की फाइब्रस है, और दिस इज एंडोस्पर्म दैट इज इनर मोस्ट. ये कोकोनट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. 2 की ड्राई एंड सक्कुलेंट. इसमें जूसी, ये नॉन जूसी है, ये जूसी है. जूसीज में सक्कुलेंट, फ्लैसी, इसमें जो है पेरिकार्प that is distinguished into the 3 part is there, that is as on the basis of its location. Outermost layer that is called epicarp, middle one fleshy juicy that is known as mesocarp, and innermost hard stone that is endocarp is there. इस कैटेगरी के अंदर फिर हम देखते हैं कि एक कैटेगरी जो है, ये तो हो गए सिंपल के और इसके डिस्टिंग्विश पार्ट हो गए. इस सिंपल वाले में एक कैटेगरी जो है दैट इज नोन एज ड्रूप. इस ड्रूप की कैटेगरी डेवलप्स फ्रॉम द मोनो और द मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी. एज आई हैव टोल्ड यू कि इस ग्रुप में ड्रूप जो है वो या तो एक सिंगल ओवरी से बनते हैं या फिर वो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होगी, लेकिन वो सभी फ्यूज होंगे. दैट इज सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी यहां से ड्राइव होते हैं, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज मैंगो, कोकोनट, प्लम, आलमंड, ठीक है, और चेरी. इस टाइप से जो है इन्होंने सक्कुलेंट के ये ड्रूप की कैटेगरी में दोनों को रख दिया. यहाँ पर जो ड्रूप की कैटेगरी जो है जिसमें मैंगो है और दैट इज कोकोनट जो है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश हमने आपके सामने यहाँ पर किया हुआ है. मैंगो जो है ये जूसी जो है यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पर इस केस में जो है वो इनडिस्टिंक्ट है. यहाँ पर एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म जो है दैट इज एडिबल इज देयर. यहाँ पर आप देखते हैं कि एंडोकार्प दैट इज नॉन एडिबल पार्ट इज देयर, where in this case mesocarp that is very much that is edible part is there, where in this case of that is the fibrous in nature. So this is the a little bit demarcation
that you have to distinguish between the mango and the coconut is concerned is there. देन यहाँ पर वही सेम चीज जो है मीजोकार मैंगो और कोकोनट के बीच में हम इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश मार्क जो है वो कोड करना है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वट एवर द क्वेश्चन इफ दैट इज framed during your NEET examination 2026 certainly these the distinguished characters that you have to emphasize in your mind is there. This is important things about that is the little bit knowledge of that is the fruits are concerned is there. So thank you. This is a little bit as per your syllabus. So that is, it is all about the fruit is there, their importance, features and distinguished characters we have discussed with you. At last but not least, you are again requested that if you think my lecture is worthwhile, so please share, like and subscribe accordingly. Thank you please. Good night.